Rutherford alpha particle scattering experiment was responsible for the discovery of. Really, Rutherford experimented with gold fire, and he located the position of nucleus in the atom. So thus option C is correct. Now come to question 82. Question number 82. Which one of the following statement is not correct? Option A. In the conduction mode of transfer of heat, the molecules of solid pass heat from one molecule to another without moving for their position. So really it is good question, statement, and it is not, it is correct. Because in conduction there is no movement of particles, only heat takes move from one place to another place. Now question B, option B, the amount of heat required to raise the temperature of a substance is called a specific heat capacity. Really this statement is wrong, because this amount of heat is known as heat capacity only, non-specific heat capacity. Because a specific heat capacity when defined, the mass should be unit. So that is why this option is wrong. So option B is correct for 82. 82 option B. Come to question number 83. The amount of heat required to change a liquid to gaseous state without any change in temperature is known as. Really, this is the heat which is defined as latent heat. Latent heat is the amount of heat without changing any temperature. Only state of change takes place. So thus 83, the option C is correct. 83, option C is correct. Question number 84. In question number 84, there is a graph of displacement and time. So really two particles which are in same phase should have distance or time equal to lambda by 2 or one complete wavelength. So thus we see in between particle 3 and 7 there is a one complete wavelength. So that is we say question number 84. For 84, C option is correct. C is correct. Look here. Match. We have to match list 1 with list 2 and select the correct answer. The code given below. Hypermetropia. In this disease, one uses convex lens. In myopia, one uses concave lens. In presbyopia, bifocal is used. And in case of cataract, surgery is important. So now the option will be 4, A4 and B2. Thus and C1 and D3. It means option A is correct. 85A. Question number 86. Question number 86 आइए. क्वेश्चन नंबर 86 में क्वेश्चन में बता रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी लेंथ, पूरी लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम, यानी कि ये कॉइल है, इसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम. और अगर हम इसको इसके डायमीटर के सिरे पर जोड़ देंगे तो बट में जो रहेगी ये इसका हिस्से का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा और इस हिस्से का रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा. और ये दोनों हिस्से आपस में समांतर क्रम में या पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जिनका की रेजिस्टेंस हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं. 1/r = 1/10 + 1/10, दैट इज 1/r = हो जाएगा 2/10 और इसको काट दें तो 1/5 हो गया. तो दैट इज r = हो जाता है आपका 5 ओम. इस तरीके से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 86 का ए ऑप्शन हमारा सही है. क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन में है कि एक
परिनालिका है जिसको कि हम लोग सोलेनॉइड कहते हैं और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। तो किसी भी सोलेनॉइड में जो आई करंट फ्लो होती है इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, जहां पर म्यू नॉट आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, म्यू नॉट को हम लोग कहते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और एन जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, फेरों की संख्या जिसको हम लोग कहते हैं, और आई है वो है करंट, विद्युत धारा जो कि परिनालिका या सोलेनॉइड में बह रही है। यदि म्यू और आई दोनों सेम रहते हैं तो बी हमारा जो बी जो होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू एन, अर्थात अगर हम लोग एन को डबल कर देंगे यानी दूना कर देंगे तो परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी या सोलेनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी डबल हो जाएगा, अर्थात इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। तो 87 का बी। इसके बाद आते हैं हम लोग 88 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 को अगर आप देखिए तो इसमें है कि which of the following statement is correct about the magnification of an optical microscope? मैग्निफिकेशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है वो ये है m इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट और 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, जहाँ वी नॉट जो है वो आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंस और यू नॉट है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट लेंस, और डी जो है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, और ये सामान्य आंखों के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, और एफ ई है हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस या जिसको हम लोग नेत्रिका भी कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला है मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अगर हम लोग आई पीस की फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो स्पष्ट है, क्लियर है कि ये चीज हमारी कम हो जाएगी, और ये कम हो जाने पर मैग्निफिकेशन का मान भी कम हो जाएगा, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है, सही नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैग्निफिकेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंस के फोकल लेंथ का कोई टर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सी देखते हैं, मैग्निफिकेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, क्योंकि आई पीस मैग्निफिकेशन में मौजूद है, प्रेजेंट है, इसलिए इसका इफेक्ट जरूर होगा, अतः इसका भी ऑप्शन गलत है। चौथे ऑप्शन में मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे हम एफ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी, और बट नेचुरल है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, इसलिए 88 का डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 106। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ अ डबल कॉन्वेक्स लेंस आर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, and refractive index of the glass is 1.5. What is the power of this lens? So look here, focal length of a lens by lens maker formula is given as 1 mu2 minus 1 upon r1 minus 1 upon r2 equal to 1 upon f. In case of कॉन्वेक्स लेंस की स्थिति में
R1 जो है वो पॉजिटिव है और R2 हमारा जो है वो निगेटिव होता है। तो हमारा सूत्र होता है 1μ2 - 1 और 1/R1 + 1/R2 = 1/F। चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, यहाँ हम लोग 1.5 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1/10 और +1/20 और इसको हल करने पर आता है 0.5 × 3/20 और ये आपका होता है 0.5 × 3/20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और ये आता है 40, दैट इज 3/40। तो F की वैल्यू आती है हमारी 40/3 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 40/300 मीटर। पावर ऑफ लेंस को लिखा जा सकता है 1/F, वेयर F इज इन मीटर, जहां F को हम लोग मीटर में नापते हैं। तो P बराबर हो जाएगा 1/F। F की वैल्यू हमारी दी हुई है जिसको निकाल चुके हैं, ये है आपका 40/300, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 300/40। ये कटने के बाद आता है +7.5 डायरेक्टर, जो कि ऑप्शन में पहला है, तो इसलिए 106 का आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 को आप देखिए 107। यहां पर कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम में यूजिंग अ थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ L is T। तो suppose the temperature of room in which this simple pendulum is placed increases by 30 degrees Celsius, what will be the effect on the time period of pendulum? तो सबसे पहले तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे। टाइम पीरियड का फार्मूला सिंपल पेंडुलम का होता है 2π√L/G। क्लियर है कि हमारा T जो है प्रोपोर्शनल टू √L है, जिसकी लंबाई बढ़ने पर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन होगा, लंबाई में कुछ वृद्धि होगी, लंबाई में कुछ इंक्रीज होगा और कुछ इंक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड भी हमारा थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा T विल इंक्रीज स्लाइटली। तो हम लोग इसको 107 का ये आंसर हमारा ये ऑप्शन सही। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि which of the following physical quantity has same unit as that of pressure। हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेस ये भी होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वास्तव में यहाँ पर फोर्स को हम लोग न्यूटन में नापते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पे फोर्स को न्यूटन में नापेंगे और एरिया को मीटर स्क्वायर में। इस तरह से हम देखते हैं कि फोर्स, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की इकाई या यूनिट सेम है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है 108 का वो आपका ऑप्शन बनता है बी में स्ट्रेस का ठीक होगा उसी के बराबर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 में। क्वेश्चन नंबर 109 में which one of the following statement is correct with the regard to the material of electric insulator? They contain no electron। चूंकि जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं यूनिवर्स में सभी के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है। हाँ, ये जरूर है कि जो इंसुलेटर्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव, वो मूव करने के लिए स्वतंत्र है नहीं है, और इसीलिए करंट उनमें फ्लो नहीं होती है। इसीलिए 109 का बी ऑप्शन आपका सही है।
इसके बाद आ जाइए आगे, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। 110 में अगर हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ सिलिंड्रिकल रजिस्टर। वास्तव में किसी रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इस फार्मूले से दिया जाता है। वो फार्मूला R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहां रो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ए जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि इस फार्मूले में करंट नहीं है, अतः करंट का कोई प्रभाव नहीं होगा और ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 119 119 नंबर क्वेश्चन कहता है सपोज अ रॉड इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज बाय रबिंग इट विथ वूल, which one of the following statement is correct in case the negative charge are transferred from the rod to wool। ये क्वेश्चन नंबर सी है, ऑप्शन सी है। और पहला ऑप्शन है द पॉजिटिव चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। द पॉजिटिव चार्जेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू रॉड, वही कारण है, दूसरा भी गलत है। और द नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू वूल, चूंकि रब करने के बाद रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, अतः जो है सी ऑप्शन सही है हमारा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर कभी नहीं होता और जब भी किसी रॉड को हम वूल से रब करते हैं तो रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। और ये पॉजिटिवली चार्ज इसलिए होता है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन रॉड से निकल करके वूल में चले जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में रिलेशन दिया गया है। ओमेगा को हम लोग कोणीय फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, और ये बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी के। और चूंकि 1 अपॉन टी बराबर एफ होता है, इसलिए हम इसको ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। और हमें इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बी में ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ दिया हुआ है।